तो अवंतिका इतना जल्दी आउट हो जाना आपने एक्सपेक्ट किया था? आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ कमी रह गई जिसके कारण आप आउट हो गए? मुझे, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे लगा था कि मैं इससे भी ज़्यादा जल्दी बाहर निकल जाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने आप को मतलब मैं पहले ही अपने काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी जब मुझे पता चला था कि दीज़ आर लाइक इतने ज़्यादा, दे लाइक देव ऑलरेडी डन शोज़, एवरीवन इज़ फ्रॉम मुंबई और पुणे, या और सब इज़ एवरीवन इज़ लाइक सो प्रिटी एंड स्टफ, सो आई वाज़ वेरी इनसिक्योर लाइक पता नहीं मैं सर्वाइव भी करूँगी। बट इस डोम में मेरे को लगा नहीं था कि मैं बाहर निकलूँगी, क्योंकि अपैरेंटली पीपल हू वर इन पावर वर माय फ्रेंड्स, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इस पर्टिकुलर डोम में बाहर जाऊँगी। It was kind of shocking, but again, I was like, okay, cool. I get rid of this madness. Like, anyways, no one ever liked me here. तो कुछ point भी नहीं था ऐसे. क्योंकि Spitsula is all about love, and या to be in a show which is about love and not have someone, not have anyone, like not even from the other gang, not even from your gang to like you. I think it's just very miserable and offbeat, like या offbeat. But like, I would never want to be a part of place जहाँ पे मुझे कोई पसंद ना करता हो. So I was अवंतिका like, अपने ही दोस्तों से ऐसा फीडबैक पाना कितना शॉकिंग था आपके लिए? कितना आप शॉक हो गई जब सबने आपका नाम लिया? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस आल्सो जर्नी के दौरान? oh, it was like very shocking, obviously, because I was very like clear about my priorities from day one. और मुझे लगा नहीं था कि मैं उस दिन डंप होंगी, क्योंकि मैंने सबको सबको पता था मेरा कि आई वुड लाइक या नेवर टेक सम स्टेप्स व्हिच इज लाइक अगेंस्ट देम. और जहां तक मुझे लगता है उस डोम में मेरा डंप होने का रीजन भी यही था, क्योंकि मैंने कुछ वैसा किया जो वो लोग नहीं चाहते थे. आई लाइक टुक द names which they did not wanted to take. मैं या पूरे season I've like done everything according to them, and this one time I played for myself, I was out of the show. और ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि Avantika, play for yourself. I know like you're there for us, या but also you should play for yourself. And these are the people who again dumped me after saying play for yourself, which was like very offbeat. But again, I understand, because they were like very clear, if you go against us, we're going to go against you. So cool, if you like think like me going one time against you made a difference in your like journey, it's fine. It's just your decision to make, and I'm no one to या tell you कि तुम्हारा narrative कैसा हो. तो गैरी के साथ बॉन्ड कैसा था आपका? और आपको लगता है कि क्या गैरी के साथ आने के बाद ही ये सब हुआ है? गैरी के साथ जो भी था, it was very hot and cold. One day we performed together, फिर दूसरे एपिसोड में हमारी फिर से लड़ाई हो जाती थी, फिर उसके बाद हम लोग फिर से परफॉर्म करते थे साथ में, फिर से लड़ाई हो जाती थी. It was apparently because ना गैरी के पास कोई और था परफॉर्म करने के लिए, ना ही मेरे पास. गैरी की साइड से कभी भी like कुछ भी like it was never anything romantic, and he was like very clear about it. और in the beginning of the show I had a soft corner for him, but धीरे धीरे it just went away, because he never like, I remember this episode where he criticized me so much, and I was like so disappointed, like how could you like ever talk about someone उस way में. और उस episode के बाद भी like we patched up things, because apparently we had no other option. We were like the जी. only two people who were alone, and we had to like pair up again together. And उस process में I had like lost my respect for him. But then in Dome, he really took a little. I was not like expecting him to take my side, but he really did take a little bit of my side. And right now, after the Dome, I really started respecting him again. But yeah, it was never meant to be. So it was like very upar niche. So it's like useless to even talk या about it anymore. हमने आपका एक इमोशनल साइड भी देखा था निकिता को लेकर, जब आप केविन से बात भी कर रहे थे, उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या अभी भी निकिता के साथ वही गिले शिकवे है? नहीं, शो के बाद मैंने किसी के साथ कोई गिले शिकवे रखे नहीं. जब शो खत्म हो गया था, शूटिंग खत्म हो गई, उसके बाद आई वाज लाइक क्या? डन विद इट. मुझे किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं बनना था. मैं कभी शो में किसी के साथ ज्यादा गिले शिकवे नहीं रखे, तो शो के बाद रखना तो कोई सेंस क्या? बनता ही नहीं था. और उस वक्त आई रियली फेल्ट सैड, बिकॉज निकिता वाज लाइक द फर्स्ट फ्रेंड आई मेड इन द शो. वो पहली दोस्त थी मेरी. और जब वो सब कुछ हुआ, दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, क्योंकि जो भी मैंने किया था उसको पता था कि मैं वो करने वाली हूँ. उसने मुझे इनफैक्ट आगे से खुद एडवाइस किया था कि यू शुड गो फॉर माय कनेक्शन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू सेफ हो जाए और तेरे साथ मेरा कनेक्शन भी सेफ हो जाए, तो मैं ही फायदे में रहूंगी.
और वो burst out, I don't know where did it come from, but yeah, it was like not very cool and the nicest thing to do. Obviously there are few things, you know, which breaks a relationship apart, चाहे फिर वो दोस्ती हो चाहे फिर वो कुछ जी और हो, but apparently after the show I chose not to, like, you know, keep all of these things in my heart, क्योंकि वो फिर आप ही के दिल को भारी करेगा, किसी और को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो रणवीर जी और सन के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना कैसा था वो एक्सपीरियंस, कितना Oh एंजॉय God, किया आपने? you can't believe it. Like when I saw, see, I have had like a crush on Ranvijay from like a long time, and when I saw him, I was like, oh my Yeah, God, like I cannot believe that I'm seeing this dude right here in front of me, and yeah. I was like so happy to see those people around me, and it was like very new to me. I was very happy, like जो भी कुछ हुआ शो में, पर खत्म होने के बाद I was like cool, ठीक है, I wouldn't, it's fine, Yeah. I've like learned a lot of things from it, क्या करना है जिंदगी में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, I've like learned a lot of things from the show, Yeah. and I think I wouldn't like change anything about it, क्योंकि it's just done now, कोई फायदा नहीं है कुछ सोच कि काश वैसा क्या होता, काश वैसा क्या होता. ओके, सो फाइनली एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया था आपको ये शो के दौरान? I would just like to say that I'm very grateful, like जितना भी उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे कभी लगा नहीं था कि, क्योंकि अगर मैं अपने आप को, अगर मैं जैसा मैंने शो में एक्ट करा है और अगर मैं किसी को देखती वैसा, मैं बस सोचती कि लाइक हाउ मिजरेबल आर यू, लाइक तुम कर क्या रही हो अपनी जिंदगी के साथ, पर मैंने देखा कि लाइक यू नो पीपल कुड लाइक सी थ्रू इट, कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कि कौन कब क्या बोल रहा है, कब कहाँ से कौन सी बात ऊपर आ रही है. तो it was like I am so lucky to have these people in my life, जितने भी, and I'm really grateful कि these guys support me till that date, और मुझे इतना प्यार मिला है, I'm like so thankful and grateful, so yeah. Okay, thank you Avantika for giving your precious time and all the best. Thank you so much.